So today first topic is D flip-flop. All of you sit with the uh, pen and paper and try to make the notes if possible. Okay. So this D flip-flop have one input and this input is D. This terminal is the input of this flip-flop. We already discussed the preset and clear. So this is the preset and clear used to set the initial output. Whatever the output across the at the initial time, this Q and Q bar, it will be set by the preset and clear. We already discussed how it is set. So this output Q and Q is initially set by the preset and clear. In case of D flip-flop, one input is D, input is one input is there, D. This is the clock input, and this is the output, Q and Q bar. So in case of input, suppose your input is here D and output is Q n plus 1. Then when your input is 0, your output is 0. And when your input is 1, your output is 1. This is the truth table of D flip-flop. Truth table. Okay, means your output follow the input. जो input होगा वही output आएगा. Okay. So this D flip-flop is also called delay flip-flop. Delay flip-flop. Delay flip-flop. Delay flip-flop means you provide the input, your input is processed, and after processing the input, after some delay, you will get the same output. Means if your input is 0, output is 0. If your input is 1, output is 1. So this is the delay flip-flop. Next is we already know the truth table of JK flip-flop. So next topic is D flip-flop design using JK flip-flop.
So if you remember the truth table of JK flip flop, याद है? Anyone? Truth table of JK flip flop. JK is the input. Qn plus 1 is the output. J is 0, K is 0. J is 0, K is 1. 0, 0, 0, 1, then 1, 0, then 1, 1. What will be the output? Anyone? 0, 0, your output is? देख के बोलो. Previously we discussed for the JK flip flop, 0, 0 output, 0, 0 input, output is Qn. माने जो पहले था वही रहेगा. 0, 1 input, output is 0, 1, 0, output is 1, and 1, 1, output is Qn bar. Qn bar means your next output is equal to inverse of present output. Okay. So for 0, 0, your Qn plus 1 is same as the present. Qn plus 1, you can say next output. Okay, next output. And Qn, you can say it is present output. So if your input is 0, 0, your output is Qn, means your next output will be same as the present output. 0, 1, your output will be what? For 0, 1, output is 0. For 1, 0, output is 1. For 0, 1, your output is 0. And for 1, 0, output is 1. And for 1, 1, output is Qn bar. Okay. Here in case of D flip flop, you can say when your input is 0, output is 0, input is 1, output is 1. Means here when your J is 0, your Qn plus 1 is 0. And when your J is 1, your Qn plus M1 will be 1. Means this portion used to design the D flip flop. Is it okay? Here in this case, you can say when your J is 0, output is 0. And when your J is 1, output is 1. So your in this is suppose first row, second row, third row. So your second and third row determine the D flip flop. Here your J is equal to output. Okay. So this is required to design the D flip flop. Now how it is for the J flip flop, JK flip flop, if you remember. In case of JK flip flop, two inputs are there, J and K. This is suppose one input, J, and other input is suppose K. There is a clock pulse. Reset and clear terminal for set the initial value of output. This is preset and this is clear. Next is Q, your output, Q bar, inverse of Q. So if you see here, your J is same as the output and K is inverse of J. Okay. So here the circuit is like this. J is inverse of K, so you use a NOT gate here because J and K is in inverse. And this is the D input. Okay. So if you provide the 0, 0, your K will be 1
if you suppose D is 0, so your J is 0, K is inverse of 0 means 1, and your output will be 0. And if you provide 1 at the input, your J will be 1, J will be 1, K will be passing, this one is passing through NOT gate, so here it is 0. Across the output, you are getting the 1. So this is the design of D flip-flop by using JK flip. Design of D flip-flop by using the JK flip. D flip-flop by JK flip. Is it okay? Anyone? अरे हाँ ना बोलो. हाँ सर. ठीक है. Can I move to next topic? Yes, no. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next. Take. Next is T flip-flop. T flip-flop. T flip-flop, same as T here. T means toggle. Okay, toggle flip. It is also called toggle. Toggle flip-flop. Same as D flip-flop. It is also, it has only one input, and this the input is T. एक ही input है T. Same output is Q and Q bar. There is a clock pulse. Flip-flop बिना clock pulse का काम नहीं करता. In case of flip-flop, we need the clock pulse. There is the preset and clear. I think use of preset and clear is clear to all of you. We already discussed. So in case of T flip-flop, one input is there and the input is T and your output is Q and Q bar. Okay, this is the T flip-flop. Next is this, you can write here symbol of T flip-flop. Next is the truth table. Truth table, input, output. Input is your T, output is Qn plus 1. Okay. In case of T flip-flop, if your input is 0, your output is same as previous. And when your input is 1, your output is bar of previous one. Okay. Means here output is Qn bar. जो पहले था उसका bar, उसका opposite. Okay. If the previous input is previous output is 0, then your next one will 1. If the previous is 1, then your next will be 0. Okay, so if your input is 1, your output is toggle. Toggle माने जो है उसका inverse हो जाएगा, change हो जाएगा. If your input is 1, your output is toggle. Change 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा. So this is the truth table of T flip. Next topic, same design of T flip-flop by using JK flip. So same here from the truth table of JK flip-flop. In case of JK flip-flop truth table, these two condition means first row and last row. This is used for design the T flip-flop. Okay. इसमें देखो,
here your J value and K value is equal. J value and K value is equal. So when J is 0, your output is Qn, and when K is 1, output is Qn bar. Same here you can see. When your input is 0, Qn, output is 1, Qn bar. So JK flip-flop, first row and last row is used for designing the T flip-flop. Same way, design of T flip-flop by using JK flip-flop. For JK flip-flop, 2 inputs J and K. There is a clock terminal, clock pulse required. यहाँ पे clock के लिए input. There is a preset and clear. Use of preset and clear is clear to all of you. जहाँ प्रॉब्लम हो बोल सकते हो. Q and Q bar is your output. So you can see from the truth table of JK, J and K is equal. Then you are getting the Qn and Qn bar. J और K क्या इक्वल है, माने ये शॉर्ट हो जा रहा है. शॉर्ट कर देने से दोनों इक्वल हो जाएगा. डी में क्या था, नॉट गेट लगा रहे, दोनों इनवर्स था. एंड दिस इज द टी. इफ टी इज 0, your output is Qn, and if the t is 1, your output is Qn bar. Okay, t 0 मैंने J और K दोनों 0 0 हो जा रहा. Your output is, your next output is same as present output, or your, if it is 1, your next output is inverse of present output. Okay, ठीक है. 0 होने पे सेम रह जाएगा, 1 होने पे जो था उससे बदल जाएगा. It is okay? Yes, no? Yes, sir. अगर इनपुट 0 रहे तो वही रह जाएगा, 1 रहे तो Qn बार हो जाएगा. बस यही चीज है यहाँ पे. ठीक. Yes, no? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. ये कौन है? हाँ. नेक्स्ट टॉपिक इज, वो पेन कहाँ रखी है? हाँ. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्साइटेशन टेबल. एक्साइटेशन टेबल और फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल. फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल. अब ये एक्साइटेशन टेबल होता क्या है? पहले एक्साइटेशन टेबल जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पुराना कुछ याद कर लें. ट्रूथ टेबल क्या होता है? व्हाट इज ट्रूथ टेबल? एनीवन? ट्रूथ टेबल बोलो. सर इनपुट देके और आउटपुट आता है. सर बिहेवियर बता. ट्रूथ टेबल, हाँ, ट्रूथ टेबल जो होता है वो क्या डिफाइन करता है? इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप. ट्रूथ टेबल डिफाइन करता है इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप, वो ट्रूथ टेबल में हमको मिलता है. क्लियर? ठीक है. अब एक्साइटेशन टेबल क्या होता है? देखो, सपोज Qn जो है वो मेरा प्रेजेंट आउटपुट है. फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? योर आउटपुट इज डिपेंड ऑन द इनपुट एंड ऑल्सो द पास्ट आउटपुट. इनपुट पे तो डिपेंड कर ही रहा है फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन जो पहले जो आउटपुट था उस पे भी तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड करेगा. ओके, सपोज दिस इज द फ्लिप फ्लॉप. कोई भी फ्लिप फ्लॉप पकड़ो. सर यस. क्या ऑनलाइन भी बदमाशी हो रहा है क्या? चलो, ट्रूथ टेबल में देखो. इन फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? योर आउटपुट, सपोज दिस इज द आउटपुट, योर आउटपुट इज डिपेंड ऑन द इनपुट. इनपुट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन पहले जो आउटपुट था, प्रीवियस आउटपुट, उस पे भी तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड करेगा.
दिस इज द फ्लिप फ्लॉप। तो सपोज Qn जो है प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट Qn है, और Qn+1 जो है वो नेक्स्ट आउटपुट है। नेक्स्ट आउटपुट माने पहले कुछ आउटपुट था Qn, सपोज तुमने कुछ इनपुट दिया 0 0 0 1 वट एवर, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द नेक्स्ट आउटपुट। क्लियर? अब एक्साइटेशन टेबल क्या डिफाइन करता है? ये जो पहले जो आउटपुट था माने Qn, you can say present state, present state, और Qn+1 ये क्या तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट। Qn प्रेजेंट स्टेट माने पहले का आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट, ये दोनों सपोज ये दोनों कुछ फिक्स होने पे तुम्हारा इनपुट क्या हो सकता है ये डिफाइन करता है एक्साइटेशन टेबल। तो इनपुट इज सपोज जो भी फ्लिप फ्लॉप हो, सपोज SR फ्लिप फ्लॉप हो, तो इनपुट इज योर SR, सपोज इनपुट इज योर SR। इसका मतलब वो एक्साइटेशन टेबल क्या करता है कि प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट क्या हो सकता है, मैंने क्या क्या, सपोज ये अगर जीरो प्रेजेंट जीरो है और नेक्स्ट भी जीरो, तो उस केस में तुम्हारा इनपुट क्या क्या हो सकता है, इट इज डिफाइंड बाय द एक्साइटेशन टेबल। Okay, by definition you can note down the table which show the input of the flip-flop for all possible transition. Transition at the output is known as excitation table. थोड़ा सा भी समझ में आया या नहीं आया? एक्साइटेशन टेबल क्या है? ये तुम्हारा जो प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट है, ये सपोज पार्टिकुलर कोई वैल्यू होने पे तुम्हारा इनपुट क्या क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द मैंडेटरी इनपुट, इट विल डिफाइन बाय द एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो इज इट ओके? तो सपोज अगर 0 0 रहे तो वहां पे S और R क्या होगा? सपोज प्रेजेंट 0 रहे और नेक्स्ट अगर 1 रहे तो तुम्हारा SR क्या होगा? अगर प्रेजेंट सपोज 1 हो, नेक्स्ट अगर 0 हो तो SR क्या होगा? अगर प्रेजेंट आउटपुट 1 हो, नेक्स्ट आउटपुट भी अगर 1 ही हो, तो उस केस में तुम्हारा इनपुट क्या होगा? ओके, तो योर व्हाट विल बी द इनपुट वैल्यू फॉर द गिवन आउटपुट वैल्यू? आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट के लिए इनपुट क्या क्या हो सकता है, दिस इज डिफाइंड बाय द एक्साइटेशन टेबल। क्लियर और नॉट? desired set of input value, desired set of output value, what will be the input, possible input, it is defined by the excitation table. एक एग्जांपल करने से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। Excitation table of SR flip flop.
तो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले वी नीड द ट्रूथ टेबल. तो all of you know the truth table of SR flip flop. We already discussed in the previous classes. SR flip flop कहाँ गया देखो. SR flip flop. Your 0 0 your output is QN. 0 1 output is 0. 1 0 output is 1. And for 1 1 your output is forbidden or invalid. Okay. So this is the truth table of SR flip flop. This is required for making the excitation table. पहले बना लो इसको. पहले क्या होगा, इनपुट में योर एस एंड आर. आउटपुट में यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा करना होगा, योर क्यूएन एंड क्यूएन प्लस 1 दोनों लिखना होगा. तो फॉर एस एंड आर योर इनपुट इज 0 0, योर आउटपुट इज सेम एज द प्रीवियस. ओके. QN. SR is 0 1. आउटपुट क्या होगा बोलो. 0 1 योर आउटपुट इज, देख के बोलो. 0 0. तो फॉर 0 1 योर आउटपुट इज 0. फॉर 1 0 आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. यस. और फॉर 1 1 आउटपुट क्या होगा, इनवैलिड होगा, वो ऐसा में नहीं होगा. ओके. क्यूएन क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट स्टेट. और क्यूएन प्लस क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेट, माने नेक्स्ट आउटपुट जो होगा. अब देखो इधर, जब एस और आर 0 रह रहा है उस समय तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा प्रीवियस स्टेट जो है, पास्ट आउटपुट जो है तुम्हारा, ये 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. ठीक है. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो अगर ये 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा. और अगर ये 1 होगा आउटपुट 1 आएगा. क्लियर. यस नो. In case of SR flip-flop, when it is 0 0, your output is QN. QN माने your output is, next output is same as the past output or previous output or present output. तो तुम्हारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा, नेक्स्ट आउटपुट वो प्रेजेंट आउटपुट के, अगर पहले QN 0 था तो वो 0 ही रहेगा, अगर पहले 1 था तो 1 ही रहेगा. If your input is 0 0, your output is same as past output or same as past output, or you can say present output. Your next output is same as present output. तो अगर पहले 0 था तो नेक्स्ट आउटपुट 0 हो जाएगा, और पहले 1 था तो 1 है. नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब ये S0 R1 रहे तो यहां भी क्या होगा तुम्हारा QN, आइदर पहले का आउटपुट जो है योर प्रेजेंट आउटपुट, आइदर पहले वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. तो अगर 0 रहे तो भी ये 0 ही रहेगा, और अगर ये 1 रहे पहले तो भी नेक्स्ट आउटपुट तुम्हारा यही रहेगा, 0 ही रहेगा. क्लियर. यस नो. समझ में आया या नहीं है. जब S और R 0 0 रहे तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट इज QN, माने जो पहले था वही रहेगा, नो चेंज. तो अगर वो 0 था तो 0 रहेगा, अगर वो 1 था तो 1 रहेगा. क्लियर. जब हाँ सेम SR जब 0 1 रहे तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा. आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट जो होगा 0 हो जाएगा. माने अगर प्रीवियस में वो 0 रहेगा तो भी 0 हो जाएगा, और 1 रहेगा तो भी 0 हो जाएगा. ओके, क्योंकि वो 0 ही रहेगा. क्लियर. सेम अगर 1 0 क्यों हो जाएगा, हाँ 0 क्यों हो जाएगा. जब S 0 रहे और R 1 रहे तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा. सिंपली देखो,
चलो ये तुम्हारा S है, ये तुम्हारा R है, S R, और ये तुम्हारा सपोज ये तुम्हारा आउटपुट का टर्मिनल है Q। हाँ, अब जब ये S 0 रह रहा है, आउटपुट 1 रह रहा है, अब यहाँ पे प्रीवियस जो पहले जो भी था, पहले यहाँ पे 1 रहा था या 0 था, दोनों में कुछ भी था, तुम्हारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। S0 R1 उस केस में आउटपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा, चाहे जो भी पहले था। यही है ना? हाँ सर। तो अगर पहले का आउटपुट अगर 0 था तो भी 0 हो जाएगा, अगर 1 था तो भी 0 हो जाएगा, माने यही हो जाएगा। क्लियर? ये 0 ही मिलेगा चाहे पिछला जो भी आउटपुट रहा हो। योर नेक्स्ट आउटपुट विल बी 0 फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल तो यही बोल रहा है ना? यस नो? सर यस सेम देखो, जब एस आर 1 0, एस आर जब 1 0 तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर पहला आउटपुट अगर 0 रहे तो भी 1 होगा, तो भी 1 और होगा, हाँ, और 1 और रहेगा तो भी। अगर पहला 1 रहे तो भी ये 1 ही रहेगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और ये तो इनवैलिड कंडीशन है 1 1, तो इसको तो बात दे दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अगर प्रॉब्लम हो तो रोक सकते हो। अब इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से ही हमको एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन सर ये टेबल इतना दूर एक्साइटेशन टेबल नहीं था, ये ट्रुथ टेबल नहीं, था। ये प्रोसेस था एक्साइटेशन टेबल बनाने का। ये ट्रूथ टेबल ही था। ट्रूथ टेबल में हम लोग ने प्रीवियस का एक कॉलम ऐड कर दिया और इसको यूज करके हम लोग एक्साइटेशन टेबल बनाए। अच्छा। ठीक है, तब एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब देखो, तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा? एक तो क्यूएन होगा। क्यूएन क्या है तुम्हारा? प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट स्टेट जो भी लिख लो, प्रेजेंट आउटपुट ही लिख लो। चलो, एक कॉलम क्या होगा तुम्हारा? नेक्स्ट आउटपुट, Qn+1। ये तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट जो भी कहो। ठीक है, अब इस दोनों पे डिपेंड करके पॉसिबल इनपुट्स क्या होते हैं, यही एक्साइटेशन टेबल डिफाइन कर रहा है। ठीक, एस और आर क्या होगा फॉर द गिवन सेट ऑफ प्रेजेंट आउटपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट। क्लियर? यही एक्साइटेशन टेबल बताता है। अब देखो, अगर ये Qn+1, ये दोनों को मिला के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? आइदर पहले 0 था नेक्स्ट भी 0 हो, पहले 0 था नेक्स्ट 1 हो आउटपुट, पहले 1 था नेक्स्ट 0 हो जाए, या पहले 1 था नेक्स्ट भी 1 हो जाए। यही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? यही पॉसिबिलिटी है ना। पहले सपोज आउटपुट 0 था नेक्स्ट भी 0 ही रहे, पहले 0 था नेक्स्ट सपोज 1 हो जाए, पहले 1 था नेक्स्ट 0 हो जाए, पहले 1 था नेक्स्ट 1 ही रह जाए। तो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ योर आउटपुट। ओके, तो इस केस में तुम्हारा एस और आर क्या क्या हो सकता है? दिस इज डिफाइंड बाय द एक्साइटेशन टेबल। व्हाट इज द possibilities of input for the given set of output? क्लियर? अब देखो यहां क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में देखो, 0 पहले भी 0 था नेक्स्ट भी 0 रहा है, तो 0 से 0 कहां चेंज हो रहा है? देखो यहां पहले भी 0 था नेक्स्ट भी 0 है, फिर और कहां हो रहा है? पहले भी 0 था नेक्स्ट भी 0 है, और कहीं है चेंजेस? ये 0 से 0 और कहीं नहीं है।
क्लियर और नॉट? यस सर। तो अब देखो 0 से 0 जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ हो रहा है, जब S 0 रह रहा है, R 0 रह रहा है, माने जब ये कहाँ पे हो रहा है, जब S 0 रह रहा है और R 0 रह रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है, माने 0 0 वाली पॉसिबिलिटी कहाँ है, जब S और R दोनों ही 0 0 रहे। 0 0 0 से 0 कब हो रहा है, जब दोनों ही S R 0 0 रहे। और फिर कहाँ है, जब S 0 रहे और R 1 रहे। दो जगह ये पॉसिबिलिटीज आ सकता है फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, ऊपर में जो हम लोगों ने किया वहीं से आ रहा है। क्लियर? ये तुम्हारा S और R, यही दो पॉसिबिलिटीज में ये प्रेजेंट 0 और नेक्स्ट 0 हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? प्रेजेंट भी 0 रहे, प्रेजेंट आउटपुट भी 0 रहे और नेक्स्ट आउटपुट भी 0 रहे, ये दो बारी पॉसिबल है। जब S0 R0 हो, देख रहे हो 0 से 0 हो रहा है, और एक S 0 रहे और R 1 रहे, उस केस में भी ये 0 से 0 ही हो रहा है। क्लियर? यस नो? यस सर। तब देखो, अब यहां देखो, इस केस में तुम्हारा S जो है सेम रह रहा है दोनों ही कंडीशन में, तो S जो है 0 रहेगा, और R जो है चेंज हो रहा है, तो ये R may be 0, R may be 1. So for 0 0 your S is 0, R don't care, माने R is maybe 1 maybe 0. Clear? Second possibilities है प्रेजेंट आउटपुट इज 0 और नेक्स्ट आउटपुट इज 1, माने 0 से 1 में चेंज हो रहा है। पहले 0 आउटपुट था, वो नेक्स्ट में 1 हो जा रहा है। ये पॉसिबिलिटीज कहाँ है, देखो 0 से 1 में ट्रांजिशन, यहाँ तो क्या हो रहा है 1 से 1 में हो रहा है, या 1 से 0 में हो रहा है। हम लोग को क्या चाहिए था, 0 से 1 में, तो 0 से 1 में ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है 0 से 1 में ट्रांजिशन। ठीक है, तो 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, S 1 रह रहा है और R 0 रह रहा है। ये एक ही है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है 0 से 1 में ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो फॉर ये 0 से 1 में ट्रांजिशन के लिए क्या था, S 1 रह रहा है और R 0 रह रहा है, तो S 1 R 0, ये तुम्हारा S 1 और R 0। क्लियर? ये वाला स्टेट खत्म। दिक्कत हो रोको, पूछो। नेक्स्ट फिर 1 से 0 में ट्रांजिशन, माने पहले प्रेजेंट आउटपुट 1 है और नेक्स्ट आउटपुट 0 हो जाए। इसका पॉसिबिलिटीज कब कब है, प्रेजेंट 1 रहे नेक्स्ट 0 हो जाए, यहाँ तो 1 से 1 हो रहा है, देखो यहाँ प्रेजेंट 1 है नेक्स्ट 0 रहे, यही तो खोज रहे थे ना, 1 से 0। तो प्रेजेंट 1 है और नेक्स्ट क्या है 0 हो जाए, एक ही पॉसिबिलिटीज है। और ये कब आ रहा है, ये इस केस में 0 1 केस में आ रहा है। ठीक है, यस नो? तो 0 1, ये 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट 1 हो, प्रेजेंट आउटपुट 1 हो और नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही हो। ये पॉसिबिलिटी कब आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट भी 1 ही रहे और नेक्स्ट भी 1 ही रहे। और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है प्रेजेंट भी 1 ही रहे नेक्स्ट भी 1 ही रहे। तो ये 1 से 1 में ट्रांजिशन ये 0 0 पे हो रहा है, और 1 से 1 में ट्रांजिशन 1 0 पे हो रहा है। माने ये जो केस है दो जगह पॉसिबल है, जब ये दोनों ही 0 हो S और R, और एक जगह का पॉसिबल है जब S 1 हो और R 0। ठीक है, 1 से 1 में चेंज।
S1 हो और R0, S1 हो और R0। इस केस में क्या हो रहा है, ये कॉमन है, R जो है 0, तो ये 0 हो जाएगा, और S जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये डोंट केयर। S जो है मे बी 0 मे बी 1। ओके, तो दिस टेबल इज योर excitation table of this table is your excitation table of SR flip flop. Process is clear or not? बोलो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर yes तो फिर same process, you can draw the excitation table for JK, you can draw the excitation table for T, you can draw the excitation table for D. Same process for all flip flop. ठीक, फटाफट एकदम 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, हो जाएगा। हाँ या ना? चलो सर फटाक अब से इसके कर। बाद समझ में नहीं आएगा। नहीं आया? ठीक है, नहीं, अब नहीं है, इसके बाद समझ में नहीं आएगा। इसके बाद नहीं समझ में, इसके बाद तो रिवीजन है, इसके बाद तो नया नहीं हो रहा है। जो तुमने एसआर में फॉलो किया उसी से तुमको जेके बनाना है, प्रोसेस सेम है, रटना कुछ नहीं है। चलो मैं फटाक से कर रहा हूं तुम लोग के हेल्प से। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एक्साइटेशन टेबल फॉर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। पहले हम लोगों ने एसआर का बनाया, अब जेके का बनाया। एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब वही है जो पहले की हो, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है यहाँ पे। एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू डिजाइन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, ट्रूथ टेबल ऑफ जेके, ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। देख लो, अगर कहीं नोट करके रखी हो तो देखो सर, क्या होगा, इनपुट जे के, इनपुट ये होगा ना जे एंड के, आउटपुट में हम लोग को क्यूएन भी कंसीडर करना होगा। तो क्यूएन मैंने प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट स्टेट, Qn+1 मैंने नेक्स्ट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अब फटाक से पहले देख लो जे और के में पॉसिबिलिटीज क्या है। जब 0 0 रहे आउटपुट क्या होगा बोलो, ट्रूथ टेबल जे के, व्हेन J0 K0 योर आउटपुट इज, बोलो, देख के बोलो, QN. Qn। जो प्रीवियस था वही रह जाएगा। जब 0 1 रहे तो बताओ, 0 1 0. 0, शाबाश। फॉर 1 0 आउटपुट 1. 1, वेरी गुड। फॉर 1 1 आउटपुट QN bar. Qn बार, बहुत सही। ठीक है, अब देखो, अब 0 0, अब यहाँ प्रीवियस, ये तुम्हारा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट। तो प्रीवियस आउटपुट क्या हो सकता है, इट मे बी, अच्छा इसको एक एक कॉलम कर दे रहे हैं तो तुम लोग को शायद थोड़ा बेटर होगा, इसको अलग अलग कर दूं तो शायद बेटर होगा, दिखने में अच्छा लगेगा शायद। अब देखो Qn, अब Qn क्या हो सकता है, Qn 0 भी हो सकता है, Qn 1 भी हो सकता है। योर प्रीवियस और प्रेजेंट स्टेट, योर पीएस इज मे बी 0 और मे बी 1। ये जो प्रेजेंट स्टेट था वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो अगर ये 0 रहेगा तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, बोलो। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 रहेगा तो नेक्स्ट स्टेट 0. 0 ही रहेगा, नो चेंज। और अगर ये 1 रहेगा तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट 1. 1, नो चेंज। अब इस केस में देखो, जब J0 K1,
तो तुम्हारा प्रीवियस जो प्रेजेंट स्टेट है वो मे बी 0 हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा तो भी 0 होगा, 0 रहेगा, अगर 1 रहेगा तो भी 0 रहेगा। तो जो भी ये वैल्यू रहे, योर आउटपुट इज 0, your next output is 0 whatever the present output for this input. Clear? हाँ बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट भाई, अगर ये इनपुट 1 0 रहे तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट 1 ही होगा। तुम्हारा प्रीवियस आउटपुट 0 रहेगा तो भी ये 1 होगा, और अगर ये 1 होगा तो भी ये 1 ही रहेगा। क्लियर? यही रहेगा ये, ठीक है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. और जब 1 1 वाले केस में ये QN बार हो जाएगा। QN बार माने अगर पहले 0 था तो ये 1 हो जाएगा, और पहले अगर 1 था तो ये 0 हो जाएगा, यही ना? QN बार तो 0 से 1 1 हो, 0 होने से 1 हो जाएगा, 1 होने से 0। अब तो दिस ओके, कहीं डाउट? Yes, sir. क्या डाउट है? नहीं सर। ठीक है, बस अब इसके बाद एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल अब टाइटल में नहीं लिख रहा हूं। एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा, QN होगा और QN प्लस 1 होगा, ठीक है? और QN और QN मैंने योर प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट स्टेट, और QN प्लस 1 मैंने योर नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट आउटपुट। तो तुम्हारा इनपुट क्या क्या हो सकता है? इनपुट ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप था, JK था ना, तो JK। अब देखो, तो ये दोनों से क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहले भी प्रेजेंट स्टेट भी 0 रहे, नेक्स्ट स्टेट भी 0 रहे, प्रेजेंट 0 रहे, नेक्स्ट 1 हो जाए, 0 0 0 1, देन प्रेजेंट 1 रहे, नेक्स्ट 0 हो जाए, और प्रेजेंट 1 हो, नेक्स्ट भी 1 ही हो। यही 4 पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, 0 से 0 में ट्रांजिशन माने पहले भी 0 रहे, नेक्स्ट आउटपुट भी 0 रहे, ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है? देखो यहाँ पे 0 से 0 में ट्रांजिशन यहाँ पे है, 0 से 0 में ट्रांजिशन यहाँ पे है ना, और कहीं है? और तो कहीं नहीं दिख रहा, माने फॉर 0 0 एंड 0 1। तो J और K जो है 0 0 और 0 1, ये दोनों स्टेट में ये प्रीवियस आउटपुट 0 और नेक्स्ट आउटपुट 0 ये हो सकता है। तो यहां यू कैन से योर J इज कॉमन, तो हियर J इज 0, K जो है वैरी, तो K इज आइदर 0 और 1। क्लियर? यस नो? बहुत इजी है ना? जस्ट प्रोसेस को समझना है। मायरा, सृजिता, एवरीवन, इज इट ओके? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला मुझे बताओ, नेक्स्ट वाला खुद से करो। प्रेजेंट 0 हो और नेक्स्ट 1 हो, ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है? प्रेजेंट 0 और नेक्स्ट 1 कहाँ पॉसिबल है? प्रेजेंट 0 और नेक्स्ट 1 यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, 1 0 सर। और यहाँ भी पॉसिबल है, प्रेजेंट 0 और नेक्स्ट 1 यहाँ भी पॉसिबल हो रहा है ना? तो 1 0 और 1 1, 1 0 और 1 1 दो केस में पॉसिबल है कि 0
से 1 में ट्रांजिशन हो, ठीक है, 1 0 और 1 1, तो 1 0 और 1 1 इस दोनों में पॉसिबिलिटीज है कि 0 से 1 में ट्रांजिशन हो, मैंने पहले 0 था, नेक्स्ट वो 1 में चेंज हो जाए। तो इस केस में जे क्या है, 1 रहेगा, जे विल बी 1, और के जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आइदर 0 भी हो सकता और 1 भी हो सकता। क्लियर? ठीक है, यस नो? नेक्स्ट सेम 1 0, ये कहाँ पॉसिबल है, 1 से 0 में ट्रांजिशन। देखो 1 से 0, यहाँ तो 1 से 1 में हो रहा है, यहाँ 1 से 0 में हो रहा है, यहाँ पे 1 से 0 में हो रहा है, फिर 1 से 0 में कहाँ में हो रहा है, यहाँ पे 1 से 0 में हो रहा है, माने यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, माने 0 1 0 1 और 1 1 दो पॉइंट में पॉसिबल, 0 1 0 1 और 1 1, ये दो केस में पॉसिबल है कि 1 0 तुम्हारा 1 से 0 में आउटपुट का ट्रांजिशन हो, आउटपुट चेंज हो। तो इस केस में के देखो 1 सेम रह रहा है, तो यहाँ के तुम्हारा 1 हो जाएगा, और जे चेंज हो रहा है तो जे विल बी आइदर 0 और 1, ठीक। नेक्स्ट केस 1 से 1 में ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल है, यहाँ देख रहा है 1 से 1 में चेंज हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, यहाँ भी हो रहा है 1 से 1 में, माने यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। ये कहाँ पे 0 0 के केस में हो रहा है और 1 0 के केस में, दो जगह ये पॉसिबिलिटीज है, 0 0 0 0 और 1 0, लिख लो यहाँ पे 0 0 और 1 1 0, दो केस में है। अब यहाँ के जो है 0 रह रहा है और जे जो है वो आइदर 1 और 0 रह रहा है, तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? यस सर। हो जाएगा ना? सर अब तो करना पड़ेगा। पढ़ना के हाँ। तब एक काम करो, अब पढ़ना पड़ेगा मैंने, तुम कंफ्यूज हो, चलो अब नेक्स्ट वाला खुद से करो, एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप करो, सेम प्रोसेस, पहले ट्रूथ टेबल टी फ्लिप फ्लॉप का, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। चलो यूज पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेपर, एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। ट्रूथ टेबल बोलो, आउटपुट क्या होगा, और इनपुट तुम्हारा टी होगा, सर यहाँ पे 0 1 होगा ना इनपुट, हाँ क्यू और क्यू एन। आउट इनपुट यहाँ पे टी होगा, एक प्रीवियस सॉरी एक प्रेजेंट आउटपुट का एक कॉलम बनाएंगे, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट, और नेक्स्ट तो तुम्हारा रहेगा Qn+1 तुम्हारा जो आउटपुट होगा, नेक्स्ट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट। टॉगल में क्या था, जब ये 0 रहे आउटपुट क्या होगा, नो चेंज, जो पहले था वही रह जाएगा, और जब ये 1 हो टॉगल में तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा, जो पहले था, अगर पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0, Qn बार।
अब बोलो नेक्स्ट प्रोसेस, चलो गाइड करो मुझे। व्हेन इनपुट इज 0 आउटपुट इज Qn, तो अब तुम्हारा प्रेजेंट आउटपुट जो था वो क्या हो सकता है, इधर 0 हो सकता है। अच्छा यहाँ पे पहले लाइन और काट 1 दो, 0 1 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 0 रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 प्रेजेंट आउटपुट 0 रहेगा तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, 0 Qn सेम रहेगा। 0 था तो 0 ही रह जाएगा, और अगर 1 था तो 1 रह जाए। 1 हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, माने नो चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। Qn माने नो चेंज। अब अगर इनपुट 1 रहे तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट, अगर प्रीवियस आउटपुट अगर 0 था तो यहाँ नेक्स्ट आउटपुट Qn बार पहले का बार हो जाएगा, क्या होगा 1। Qn बार तो जो पहले जो था उसका बार हो जाएगा जब ये इनपुट 1 होगा, तो 0 था तो 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 था तो 0 हो जाएगा। यही तो, जो भी पहले था उसका चेंज हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट? सोच लो बाबा, सोच लो। हमारा नेक्स्ट आउटपुट इज आइदर Qn और Qn बार। Qn माने जो नो चेंज, माने जो पहले था वही रह जाएगा। तो अगर इनपुट 0 रहे तो Qn माने उसमें आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनपुट 1 रहे तो जो पहले था उसका बार हो जाएगा, अगर पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, अगर 1 था तो 0 हो जाएगा। यही तो होगा। यस नो? ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल पे एनालिसिस खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एक्साइटेशन टेबल। हाँ, एक्साइटेशन टेबल इसके बाद, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल कॉलम क्या होगा पहले बोलो, Qn योर प्रेजेंट स्टेट, Qn प्लस 1 तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट, और नेक्स्ट इसके इनपुट। इनपुट क्या था, ये टी फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पे टी होगा तुम्हारा। अब इन दोनों से कितने कॉम्बिनेशन होंगे, प्रेजेंट 4 कॉम्बिनेशन। पहले 0 था, नेक्स्ट भी 0 रहे, पहले 0 था, 0 0 0 1, 1 then 0 1 1 1 0 and 1 1। यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 0 था वो 0 ही रह जाए, पहले 0 था 1 हो जाए, पहले 1 था वो 0 हो जाए, पहले 1 था 1 ही रह जाए। तो बाय यूजिंग दिस टू देयर आर 4 कॉम्बिनेशन। अब 0 0 जब रहे, मैंने पहले प्रेजेंट स्टेट 0 रहे, नेक्स्ट स्टेट भी 0 रहे, ये उस केस में तुम्हारा इनपुट क्या हो सकता है। ओके, तो देखो कहाँ कहाँ पॉसिबल है 0 से 0 ट्रांजिशन। तो 0 से 0 ट्रांजिशन देखो यहाँ पॉसिबल है, 0 से 0 हो रहा है, और कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ 1 से 1 है, 0 से 1 है, 1 से 0, 0 से 0 एक जगह ही हो रहा है। तो उस केस में इनपुट क्या हो रहा है, 0 है, जो t इज 0। ठीक है, फॉर 0 to 0 ट्रांजिशन योर इनपुट इज 0। क्लियर? ठीक है, और 0 से 1 ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल है, देखो 0 से 1 में चेंज हो रहा है, यहाँ 0 से 1 में चेंज हो रहा है, तो उस केस में इनपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, योर t इज 1 होगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखो 1 से 0 में ट्रांजिशन, तो 1 से 0 में चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1 से 0। आउटपुट इनपुट क्या रह रहा है, 1 हो रहा है, तो यहाँ इनपुट ये 1 हो गया। 1 से 1 में ट्रांजिशन,
कहाँ हो रहा है देखो, 1 7 में यहाँ पे हो रहा है, और इनपुट क्या था, 0 था, दिस इज 0. This is the excitation table for T flip flop. Clear? ठीक है. D flip flop सेम होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर. हाँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और जल्दी से करके दिखाओ मुझे, कि बस ऐसे बोलने से होगा. चलो डी फ्लिप फ्लॉप करके दिखाओ, तब तक मैं अटेंडेंस का लिंक तैयार कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ. ऑल ऑफ यू ट्राई टू मेक द. यस यस. हेलो. रहने दीजिए सर, बहुत ओवर जा रहा है सर अब. वॉइस इज नॉट क्लियर. अच्छा वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लो जरा. मैं हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल. यस सर. हाँ बोलो 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 बोलो. वॉइस इज नॉट क्लियर, रिपीट. सर दिमाग और लेने नहीं पा रहा है. क्या नहीं ले, दिमाग नहीं ले पा रहा है. ठीक है, अटेंडेंस में शेयर कर रहा हूँ. डी फ्लिप फ्लॉप सेम मेथड से होगा. ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू इट. ओके, जस्ट वेट फॉर. शेयरिंग स्टॉप करूं या कुछ लिखना है यहाँ से? नहीं सर, हो गया है. ओके. देखो मैंने एक ही टॉपिक, एक ही कॉन्सेप्ट तो बताया है, एक से तो ज्यादा कॉन्सेप्ट बताया नहीं कि दिमाग लेने में प्रॉब्लम करेगा. सिंपली एक ही चीज मैंने डिस्कस किया है. बहुत ज्यादा होता तो मैं खुद ही बोलता. लिंक इज गिवन इन चैट बॉक्स, अटेंडेंस लिंक, ऑल ऑफ यू फिल अप इट. जो भी सीआर है वो क्लास के, सीआर जो है नाम के ब्रैकेट, नाम लिख के उसके बाद ब्रैकेट में सीआर लिख देना, ठीक है. सीआर, बाकी सब सेम. Those who are CR of the class, write your name and within bracket CR. Is it okay, everyone? Fill up the attendance. Yes. It will be active for next 5 minutes. Okay, 10:45 में मैं उसको ऑफ कर दूंगा. ठीक है, फिर आज के लिए ऑफ. किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप. हेलो, कुछ पूछना है क्या? सर अटेंडेंस कहाँ भेजना है? अटेंडेंस मैंने चैट बॉक्स पे लिंक भेजा है, देखो उसको फिलअप करो. इसमें चैट जो है ना, उसमें लिंक भेजा है. मिला? यस सर. तो फिलअप कर लो.